Okay, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe. Your family members, your parents, your relative, your friends all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last lecture, we had discussed a very important topic, and that was corresponding to the energy stored in the capacitor. We also had discussed the energy density of a capacitor. And after that, we had discussed some of the question. We had discussed some of the numerical correspondent to the series and parallel combination of the capacitor. Friends, today we are going to discuss a very important thing regarding the capacitor, and we also solve some numerical based on the capacitor. So I'm going to discuss a very important topic. I'm going to discuss a very important topic, which is important for the JEE, NEET, and good set examinations as well. Okay, are you able to hear me properly? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? Yes, sir. Okay. So friends, I'm going to discuss a very important shortcut. What happened when we place any dielectric material between the two plate of a capacitor? कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है. सो द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. In the whole region between two plate, if the whole region between two plate is filled with a dielectric material. Case number one, suppose the whole region between the two plate is filled with the dielectric material. Then what happened to the new capacitance? So friends, in the absence of dielectric medium, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने फिल नहीं किया हुआ है, सो द कैपेसिटेंस, कोई मुझे बताएगा व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस? Epsilon naught A by D. It is a epsilon naught A upon D. It is a correct. So this is in the absence of the dielectric medium. Now, if dielectric material is inserted between two plate, then the capacitance in this situation, the capacitance C dash equals to, मुझे क्या लिखना चाहिए अभी? A by KD. अभी मुझे क्या लिखना चाहिए? अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को मैंने अंदर डाला हुआ है दो प्लेट के बीच में, तो अभी व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ द कैपेसिटेंस नाउ? A by KD. तो इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन नॉट आई शुड राइट a permittivity of a medium, epsilon A by D.
but as you know, epsilon upon epsilon naught is a k. So hence I can say, in place of epsilon, I can say, in place of epsilon, I can say k epsilon naught. So now putting this value in place of epsilon, I can write k epsilon naught. A by d remains the same. But friends, epsilon naught A by d is what? C. Epsilon naught A by d तो क्या था? C. वो तो इनिशियल कैपेसिटेंस था. तो फाइनली फ्रेंड्स, व्हाट वी कंक्लूड, इफ वी इंसर्ट a dielectric medium in the between the two plate of a capacitor in such that the whole region, पूरा जो उसके बीच के दो प्लेट के रीजन का पूरा जो रीजन है वो अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल कर देते हैं, तो व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस? तो दैट इज अ सीडस इक्वल्स टू, क्या आएगा आंसर? केसी। नहीं, आपको केसी याद नहीं रखना है. आपको याद क्या रखना है? आपको क्या याद रखना है? C K. अच्छा, फाइनली द कंक्लूजन इज दैट अगर दो प्लेट के बीच का जो पूरा रीजन है उसको आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल करते हो, तो द न्यू कैपेसिटेंस इज कम्स आउट टू बी सीके. बट रिमेंबर, सब जगह पे सीके नहीं आएगा. ये सीके तभी आएगा जब दो प्लेट के बीच का जो पूरा रीजन है, the whole region between the two plate of a capacitor is 100% completely filled with the dielectric material, then the capacitance is comes out to be a k times than whatever it is initially, keeping the distance same. दो प्लेट का बीच का डिस्टेंस हम चेंज नहीं कर रहे हैं. तो दैट इज अ केस नंबर 1. नाउ केस नंबर 2. अब दूसरा केस है, सपोज केस नंबर 2, only some part between two plates of capacitor is filled with dielectric material. मतलब थोड़ा सा ही पार्ट अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के द्वारा फिल करते हैं, पूरा रीजन नहीं, थोड़ा ही पार्ट अगर फिल करते हैं, सो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन व्हाट हैपन नाउ? तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? Okay. Let us assuming that this is the two plate of a capacitor. यहाँ पे कैपेसिटर के दो प्लेट्स है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है. A distance between the two plate of a capacitor is a d. दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है. और यहाँ पे मैं अभी क्या करने वाला हूं, मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करूंगा, बट आई एम गोइंग टू इंसर्ट ओनली अ लिमिटेड पार्ट. मैंने अभी देखो यहाँ पे थोड़ा ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट किया है. मतलब जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो थोड़े ही पार्ट में है. हाँ, ये बात ऐसी है कि आप चाहे डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कहीं पे भी रख सकते हो. आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को दो प्लेट के बीच में भी रख सकते हो, साइड में भी रख सकते हो. कैपेसिटर के प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा. सो फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी
आई एम गोइंग टू पुट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब एडजेसेंट टू वन ऑफ द प्लेट। मैंने एक प्लेट के बाजू में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आप दो प्लेट के बीच में कहीं पे भी रख सकते हो, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पूरा रीजन है वो पूरा रीजन डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल नहीं है, थोड़ा ही पार्ट मैंने फिल किया हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कैपेसिटेंस के टाइम्स नहीं होगा, यहाँ पे कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा वही तो फाइंड करना है। तो अज्यूम करते हैं कि ये जो स्लैब का विड्थ है, ये स्लैब का जो विड्थ है उसका जो थिकनेस है वो टी है। मतलब मैंने दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी था, बट मैंने उसमें से टी थिकनेस के अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट किया हुआ है। पूरे दो प्लेट का बीच का पूरा रीजन मैंने इंसर्ट नहीं किया हुआ है। सो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस दैट इज वी वांट टू डिस्कस। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि ये जो चीज है, सिस्टम है, उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे एक दूसरा कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है। तो ये C1 कैपेसिटर है एंड ये C2 कैपेसिटर है। आप मुझे सोच के बताओ कि ये दोनों कैपेसिटर कौन से कनेक्शन में आ रहा है, कौन से कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है, कोई बताए? सीरीज। सीरीज में। तो हम एक काम करेंगे, C1 को अलग से फाइंड करेंगे, C2 को अलग से फाइंड करेंगे और दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला अप्लाई करके रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हम फाइंड कर देंगे। सो दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। चलो कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे C1 का वैल्यू क्या आएगा? C1 का वैल्यू क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे? एप्सिलॉन ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट नहीं, पहली बात के C1 जो है उसके अंदर मीडियम है, तो मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एप्सिलॉन आएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, T। डी के बदले टी आएगा। देखो C1 का जो विड्थ है उसका जो थिकनेस है वो टी है, तो C1 के फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट के बदले एप्सिलॉन आएगा। एरिया को तो वही रहेगा बट जो थिकनेस है वो डी के बदले टी हो जाएगा। अब हमको वैसे पता ही है कि हम एप्सिलॉन के बदले क्या लिख सकते हैं, वैसे हमको पता ही है कि एप्सिलॉन ऑफ K epsilon। इक्वल्स टू के, सो दैट्स व्हाई इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन आई कैन राइट के एप्सिलॉन नॉट ए बाय टी विल बी रिमेन्स द सेम। चलो मुझे बताओ C2 क्या लिखना चाहिए मुझे? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी। वेरी गुड। तो यहाँ पे दूसरा जो कैपेसिटेंस है वहां पे थिकनेस हो जाएगा डी माइनस टी थिकनेस हो जाएगा। तो वहां पे तो वैक्यूम ही है, तो वैक्यूम का ही परमिटिविटी लेना है। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, सो दिस विल बी द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द C2। अब ये C1 एंड C2 दोनों कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है फ्रेंड्स? सीरीज में। तो हमको पता है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन तो कैसे मिलेगा फ्रेंड्स? 1/C1 plus 1/C2। हाँ, 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1/C1 के बदले हम लिख सकते हैं के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी। ये C1 का वैल्यू मैंने रखा। अब C2 का वैल्यू मैं क्या रखूंगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। अब जो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में जाता है, तो यहाँ पे टी ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा के एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ पे डी माइनस टी ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो अब ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैंने के को ऊपर भेज दिया, के को न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो इसको मैं ऐसे ही लिख सकता। इस हिसाब से लिखने का बेनिफिट क्या होता है
कि अब जो डिनोमिनेटर दोनों टर्म का इक्वल हो जाएगा, तो अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है तो इसका मतलब ऐसा हुआ, डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि हम इसको उसके न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा d माइनस टी प्लस टी बाई के अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो फ्रेंड्स ये तो 1 अपॉन सी मिला, तो सी क्या मिलना चाहिए फ्रेंड्स? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये फॉर्मूला जो है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन के, ऐसा भी लिख सकते हो आप। अगर आप टी को कॉमन लेते हो तो इसको 1 माइनस 1 अपॉन के भी लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाला है। तो ये किसका फॉर्मूला है? अगर कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में पूरा जो रीजन है, मतलब 100% रीजन अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम के द्वारा फिल नहीं करते हो, अगर पार्शियल रीजन ही आप फिल करते हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। अगर द होल रीजन बिटवीन द टू प्लेट, if the whole region between the two plate is filled with the dielectric material, अगर पूरा रीजन अगर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल करते हो तो वो कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज होता है। बट अगर आप 100% रीजन डाइलेक्ट्रिक मीडियम के द्वारा फिल नहीं करते हो तो उसके लिए आपको इस मेथड से ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये शॉर्टकट मुझे मिला, तो फाइनली ये शॉर्टकट के द्वारा हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। JEE नीट गुजसेट के एग्जामिनेशंस में ये काम आएगा। तो फाइनली नाउ यू हैव 2 केसेस। अगर दो प्लेट के बीच का पूरा रीजन अगर मीडियम के द्वारा फिल्ड है तो क्या होता है, अगर पार्शियल पार्ट फिल्ड होता है तो क्या होता है। क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया चीज? इज इट अंडरस्टूड? हाँ सर। ओके, वंशिका इज देयर? Yes, sir. वंशिका आप लेट आए आज? Yes. अच्छा, विश्वा है वहां पे? विश्वा इज देयर? विश्वा वहां पे है? विश्वा है वहां पे? ओके, ऋषि पाटिल है वहां पे? ऋषि पाटिल, ओके। हर्षिल प्रजापति है वहां पे? ओके, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इन सबको फोन करना पड़ेगा मुझे, ये फ्रीक्वेंटली एब्सेंट हो रहे हैं सब। देखो फ्रेंड्स, अभी क्या है कि आपने शायद रिजल्ट सुना होगा, ये बोर्ड का जो रिजल्ट आया वो आपने सुना होगा। ऑलमोस्ट 71% रिजल्ट आया, ये गुजरात बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब ऐसा हुआ कि 100 स्टूडेंट में से ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट्स गॉट फेल्ड। हमारे यहाँ पे फॉर्चुनेटली अच्छा रिजल्ट है, मोस्टली 99%, एक आध बच्चा फेल हुआ होगा। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है हमारे यहाँ पे। बट जो ओवरऑल रिजल्ट आया वो बहुत ही टफ है। आपको शायद पता होगा कि पूरे अहमदाबाद में एक ही बच्चा 90% को क्रॉस कर सका। 90% को एक ही बच्चा क्रॉस कर पाया। वैसे ऑल द इयर्स इन एवरी ईयर्स प्रीवियसली more than 50 या 60 स्टूडेंट got above 90% in अहमदाबाद। बट ये जो रिजल्ट आया उसमें पूरे अहमदाबाद में एक ही बंदा को only one student got above 90 मार्क्स। और पूरे गुजरात में 90% के ऊपर स्कोर करने वाले बच्चे के नंबर्स 42 है। ओनली फ्रॉम द होल गुजरात स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग ऑल मीडियम्स, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, ऑल मीडियम्स, ओनली 42 स्टूडेंट्स गॉट अबव 90%। जो एवरी ईयर 300 to 400 स्टूडेंट होते हैं, 90% में पूरे गुजरात में लाने वाले बच्चे एवरी ईयर 300 to 400 स्टूडेंट्स होते हैं।
उसके बदले अभी जो आया उसमें 42 पर ओनली 40 स्टूडेंट गॉट अबव 90 मार्क्स। और 8-10 हजार स्टूडेंट 80% के ऊपर लाते हैं एवरी ईयर। इस बार पता है आपको कितने बच्चे? ओनली 2000 एंड 3000 के बीच में, 2500 समथिंग लाइक दैट। मतलब 2005 गुजरात में 1 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं साइंस का एग्जाम। उसमें से खाली 2500 2500 स्टूडेंट गॉट अबव 80 मार्क्स। मतलब 80 मार्क्स 80% से ज्यादा लाना भी मुश्किल हो गया अभी। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि सिलेबस जो सीबी मतलब ये जो एनसीईआरटी का जो बुक होता है उसका सिलेबस थोड़ा लेंथी होता है, बहुत सारे कंसेप्ट उसमें इंक्लूडेड है। तो आप लास्ट मोमेंट पे या लास्ट 1-1.5 मंथ में आप वो शायद कभी कर नहीं पाओगे। तो अभी आज से ही मतलब आपको पहले से ही उसका साथ साथ में प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे जो टाइम मिल रहा है आपको ये लॉकडाउन की वजह से, तो उसको आप 100% यूटिलाइज करो। अगर सपोज के मंडे एंड वेडनेसडे का आपका लेक्चर नहीं है, कोई कहीं भी लेक्चर नहीं है तनिष, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको करना चाहिए JEE के एमसीक्यू वो दिन पे आपको सॉल्व करना चाहिए पूरे दिन। तो आपको जो टाइम मिला है उसको 100% यूटिलाइज करो, अदरवाइज द सिचुएशन बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू इन द फ्यूचर। ये जो सिलेबस होता है बहुत बड़ा होता है, सभी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल आप पूछना, एक बार पूछना आपके फिजिक्स, आप मैं बता दूं फिजिक्स का, तो मैं बता दूं आपको कि हमारे यहाँ पे एवरी ईयर ऑलमोस्ट 20 to 25 स्टूडेंट गॉट अबव 90 मार्क्स। हमारे यहाँ पे फिजिक्स सब्जेक्ट में 25 स्टूडेंट 90 से ज्यादा मार्क्स लाते हैं। इस बार पता है आपको ओनली 4 स्टूडेंट गॉट अबव 90 मार्क्स एंड 20 स्टूडेंट अबव 80 मार्क्स। आप एक काम करना, आपके मैथ्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को छोड़ दो, मैथ्स एंड केमिस्ट्री को सर को पूछना कि कितने बच्चे आपके यहाँ से 90 मार्क्स के ऊपर आए हैं, तो वो बताएंगे 1-2 हार्डली नॉट। आपको उसके नंबर डबल डिजिट में नहीं मिलेगा, सिंगल डिजिट में ही मिलेगा, पूछ लेना आप कहीं पे भी। तो मतलब ये जो है वो अभी साइंस इतना इजी नहीं रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। आपको क्या करना है, आपको साथ साथ में काम करना है, आपको बहुत सारे एमसीक्यू साथ में सॉल्व करने हैं, आपको डे टू डे वर्क करना है, आपको सारे कंसेप्ट लर्न करना है। अगर आपको इसमें से मैं जो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहां पे कोई प्रॉब्लम है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरे वीडियोस यूट्यूब में मैं डालता हूँ तो वहां पे एक बार रिवीजन करो, और अगर फिर भी डाउट रहे तो मुझे व्हाट्सएप में भेजो, तो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। बट आपको साथ में करना पड़ेगा, वो नेसेसरी है, अदरवाइज इट मे बी डिफिकल्ट फॉर यू। अब हम आज बहुत हो गया, अब हम वापस से अपने ट्रैक पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सिखाया कि अगर 2 प्लेट के बीच का पूरा जो रीजन है उसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल करते हैं तो क्या होता है, और अगर पार्शियल रीजन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल करते हैं तो क्या होता है। तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आपने ले लिया होगा या फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब मैं इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स है वो हम अब सॉल्व करने वाले हैं। तो आज फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में पूछने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, ऐसे 3-4 न्यूमेरिकल्स मैं आपको आज कराऊंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं फ्रेंड्स, उसमें हम जो न्यूमेरिकल्स कुछ है उसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। સર એક ડાઉટ છે हाँ बोलो। સર અગર ડાઇલેક્ટ્રિક કોન્સ્ટન્ટ છે हाँ એને અગર આપણે પ્લેસ ના કરીએ between two zero plates player. તો हाँ। શું ફરક પડી શકે, મૂકીએ કે ના મૂકીએ? ડાઇલેક્ટ્રિક મીડિયમ આપણે પ્લેસ ના કરીએ તો એનો કેપેસિટન્સ એપ્સિલોન નોટ A/D રહેશે, એમાં પરમિટિવિટી ઓફ વેક્यूम एज इट इज રહેશે एप्सिलॉन नॉट A/D। क्वेश्चन उल्टा होना चाहिए, आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि सर अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डालते हैं तो बेनिफिट क्या होता है, उसका मतलब डालने से क्या फायदा क्या होता है। तो फायदा ये होता है कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को 2 प्लेट के बीच में इंसर्ट करते हो तो कैपेसिटी सपोज के पूरा रीजन आपने फिल कर दिया तो कैपेसिटेंस क्या होगा, के टाइम इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज हो गया तो उसका मतलब ऐसा हुआ चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी भी के टाइम इंक्रीज हो गया। तो कैपेसिटर के 2 प्लेट के अंदर डाई मटेरियल डालने से बेनिफिट ये होता है कि उसका चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ता है, इसकी वजह से हम उसको डालते हैं, उसका कैपेसिटेंस बढ़ता है।
इज दैट क्लियर? પણ ડાઇલેક્ટ્રિક છે તો એ નોન કંડક્ટિંગ હશે તો બી ચાર્જ સ્ટોરિંગ કેપેસિટી વધશે. हाँ तो चार्ज जो कंडक्टिंग मटेरियल जो है चार्ज ने कंडक्ट करे पास करावे એને મૂવમેન્ટ માં લાવે. ચાર્જ ને સ્ટોર કરવાને નોન કંડક્ટિંગ મટીરિયલ હોય એનો મતલબ એવો નથી કે ચાર્જ સ્ટોર ના કરી શકે, ચાર્જ ने मूव ना કરી શકે, એમાંથી ચાર્જ કરंट पास ना થઈ શકે. नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब ऐसा हुआ कि करंट कैन नॉट प्रोड्यूस इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, उसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता है, बट इट डजंट मीन दैट इट कैन नॉट स्टोर द चार्ज, इट कैन डेफिनेटली स्टोर द चार्ज. इज दैट क्लियर? ઓકે સર ઓકે. जैसे मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दी, आप कॉम्ब है आपके पास, तो आप जब आपके हेयर के साथ कॉम्ब रब करते हो तो क्या होता है, वो कॉम्ब नेगेटिवली चार्ज होता है, इसीलिए तो वो पेपर पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करता है. तो कॉम्ब तो प्लास्टिक का था तो भी उसने नेगेटिव चार्ज तो गेन किया ना, तो चार्ज तो उसके ऊपर स्टोर हो सकता है, बट चार्ज को मोशन नहीं करवा सकते हम उसके अंदर, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं करवा सकते उसके अंदर, चार्ज तो वो स्टोर करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इज दैट क्लियर? યસ સર. सर हाँ बोलो. सर अगर हमने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो बीच में वो अगर मेटल कर दिया तो कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा? वेरी गुड, इट इज अ गुड क्वेश्चन. अगर हम कैपेसिटर के दो प्लेट में पार्शियली या पूरा, पार्शियल रीजन पूरा पूरा मतलब मैं बताता हूँ, पार्शियल या पूरा अगर कहीं पे भी अगर आप मेटल रखते हो तो उसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा. सही बात है सर. तो बैटरी मतलब चार्ज ज्यादा होगा ना, मतलब चार्ज स्टोरेज ज्यादा होगा? हाँ, चार्ज उसको इनफाइनाइट चार्ज आप स्टोर करवा सकते हो, बट कहाँ तक करवा सकते हो, जहां तक आसपास के मीडियम का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना हो तब. तो मेटल के अंदर आप जितना चाहे उतना चार्ज डाल सकते हो अगर आसपास वैक्यूम है तो, बट उसके आसपास अगर एयर मोलिक्यूल्स है तो वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वाला कंसेप्ट तो रहेगा वापस से. वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन तक आप उसमें वहां पे कैपेसिटी वो चार्ज डाल सकते हो. आसपास के मीडियम में अगर वैक्यूम है तो आप इनफाइनाइट चार्ज भी डाल सकते हो अगर आसपास वैक्यूम है तो. इज दैट क्लियर? यस सर. हमारे फोन में भी होता है कैपेसिटर? कहाँ पे? मतलब होता है कहाँ पे? फोन में बैटरी में या कहीं? बैटरी अलग चीज है फ्रेंड्स, मैंने आप ये बैटरी के पीछे क्यों पड़े हो मुझे ये पता नहीं चल रहा. सर पता नहीं, बट वो मन बैटरी में घुस अलग चीज गया है, है. वो बैटरी अलग चीज है और ये कैपेसिटर अलग चीज है. काम क्या सर होता है तो पता है आपको? मैं फिर मेरी भी बात हम ऐसा. एक बार मेरी बात सुन लो. हाँ सर. बैटरी का काम ऐसा होता है कि वो चार्ज को एनर्जी देता है, बिकॉज ऑफ दैट चार्ज कैन फ्लो इन द सर्किट. तो बैटरी का काम क्या होता है कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा चार्ज को मोशन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बैटरी का ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो चार्ज को मोशन में लाने के लिए वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा. वैसे वहां पे फोर्स लिखा हुआ है नाम में, बट वो फोर्स प्रोवाइड नहीं करता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है. चार्ज पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज अ वोल्टेज, वर्क पर चार्ज. तो बैटरी क्या करता है कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, उसके वजह से वो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जेशन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसके द्वारा चार्ज मोशन में आता है एंड सर्किट का मतलब फंक्शनिंग स्टार्ट होता है. तो ये बैटरी का काम है. और कैपेसिटर का काम क्या है? उसका काम चार्ज को स्टोर करके रखना है, चार्ज को स्टोर करके रखना है, वो कैपेसिटर का काम है. अब क्वेश्चन ऐसा होगा कि चार्ज को स्टोर करने से बेनिफिट क्या होगा, तो वो बेनिफिट जानने के लिए आपको इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा. उसका अभी आपके कंटेंट में उसका काम अभी नहीं है. उसको चार्ज को स्टोर करने से द्वारा बेनिफिट क्या होता है उसको अभी भूल जाओ आप, उसको अभी उसके आपको जरूरत नहीं है कि उसका आप यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट. तो ये दोनों अलग फंक्शनिंग है बैटरी एंड, वैसे दोनों में एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है ऐसा होता है, बट दोनों का काम अलग है, दोनों का वर्किंग अलग है, दोनों का काम मतलब दोनों का प्रिंसिपल भी अलग है. तो आप क्या बता रहे थे बताओ मुझे. सर तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि बैटरी को चार्ज करना है, मतलब बैटरी को थोड़ी फोन, चार्ज करना होता है. सर फोन की बैटरी लो हो जाती तो हाँ हाँ फोन की बैटरी लो हो जाती है तो हम ऐसा अरे नहीं कहते कि वो तो सर सेकेंडरी बट सेल है ना, वो सेकेंडरी सर बट को थर्ड चैप्टर में ही डिस्कस करते ना, अभी ऐसा कंफ्यूज हो हाँ ये जाएगा सही सब. बात है, ये बार बार बैटरी लाके खाली खोटे टाइम वेस्ट कर रहा है. सही बात है आपका, बट सर ऐसा नहीं, बट पता हाँ नहीं. देखो वो टाइप ऑफ बैटरी होता है, ड्राई सेल दो टाइप के होते हैं. एक प्राइमरी होता है वो केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे, एक सेकेंडरी होता है. प्राइमरी को यूज एंड थ्रो होता है, उसको एक बार डिस्चार्ज होने के बाद फेंक देना होता है. सेकेंडरी सेल जो होता है वो हमारे मोबाइल की जो बैटरी होती है वो सेकेंडरी सेल है.
तो सेकेंडरी सेल को हम उसको चार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज कैसे होता है वो थर्ड चैप्टर में आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है, डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, एट दैट टाइम डिस्कस करेंगे। अभी हम जो आज मुझे जो ठीक है, सॉरी सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, very important numerical. It is a very important numerical. A slab of a material of dielectric constant K has the same area as the plate of the parallel plate, but the thickness is 3/4D. So where D is the separation between the two plates. So question is that how is the capacitance changed when the dielectric slab is inserted? तो मतलब क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड्स आपको? यहाँ पे क्या किया हुआ है, कैपेसिटर के दो प्लेट के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को एंटर किया हुआ है, और वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरा इंसर्ट, मतलब उसका जो थिकनेस है वो डी है या डी से कम है? देखो तो क्या दिया हुआ है, 3/4D। तो यहाँ पे हाँ 3/4D दिया हुआ है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, वंस अगेन वी कैन डू वन थिंग, वी कैन डायरेक्ट, मैं जो ना एक शॉर्टकट से डायरेक्टली शॉर्टकट से प्रूव करता हूँ, आपको पूरा मेथड के साथ एग्जाम में करना पड़ेगा। वो जो ना C1 ये मेथड था ना, C1 निकाला था, C2 निकाला था, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन किया था, तो आपको पूरे वही मेथड के से आपको प्रूव करना है। मैं डायरेक्टली शॉर्टकट जो अभी हमने डिराइव किया उसके द्वारा मैं यहाँ पे उसका आंसर लिखने वाला हूँ। तो शॉर्टकट क्या था पता था ना फ्रेंड? तो शॉर्टकट वर लाइक दिस, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यहाँ पे टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब हियर? 3/4D। हाँ, यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का जो थिकनेस है वो D/4 है। ओके, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस मैंने D/4 लिया। अब मुझे बताओ ये D माइनस D/4 क्या होता है? ये हो जाएगा 3D/4 प्लस D/4 के एज इट इज। चलो अब ये एप्सिलॉन नॉट ए D/4 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ डिनोमिनेटर से, और तो बाकी बचेगा 3 प्लस 1/k। अब 3 प्लस 1/k का एलसीएम ले लो, तो 3 प्लस 1/k का एलसीएम ले लो, तो 3k प्लस 1 अपॉन k, तो k ऊपर चला जाएगा, 4 भी ऊपर चला जाएगा, तो 4k अपॉन बचेगा 3k प्लस 1 और बचेगा एप्सिलॉन नॉट a/d। अब एप्सिलॉन नॉट a/d तो C0 है, इनिशियल कैपेसिटेंस है, तो फाइनली द आंसर शुड बी दिस 4k अपॉन 3k प्लस 1 इंटू C0। तो देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या हुआ इसका? सर वहाँ 3D/4 है, आपने सिर्फ मैंने D/4 लिया है। D/4 ले लिया, सही। सीमा। तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दिया, मैंने आपको ट्विस्ट करके मैंने करवा दिया कि अगर D/4 होते तो क्या आंसर आता। तो आप आपके हिसाब से अब 3D/4 का खुद घर पे जाके कर लेना खुद। सर क्या कुछ। सर घर पे ही है। हाँ तो मतलब कोई बात नहीं, अभी कर लेना लेक्चर खत्म होने के बाद। ओके, तो मैंने D/4 करके लिया हुआ है तो आंसर थोड़ा अलग आ जाएगा, तो आप 3D/4 करके ले लेना। बट आपको कौन सा मेथड करना है? आपको यहाँ पे जो मेथड दिया है वो नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2.8 का जो मेथड है ये मेथड को नहीं करना है, यहाँ पे जो दिया हुआ है उस मेथड से नहीं करना है। आपको कौन से मेथड से करना है? ये मेथड से नहीं करना है आपको कैसे करना है? 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 वाला मेथड आपको यहाँ पे करना है। इज इट क्लियर? वो कैसे करोगे आप? तो वो मैं अभी स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया ना, आपने लिया होगा, नहीं लिया तो मैं देने वाला हूँ। तो अभी वो केस नंबर 2 अभी डिस्कस किया ना हमने, तो वो केस नंबर 2 का जो मेथड है उस मेथड से आप कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये मेथड को नहीं करना है। चलो अभी नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
फ्रेंड्स क्या हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 किया था, राइट? 7th भी करवाया है। 8 સુધી થઈ ગયા સર, 9 બાકી છે. हाँ, 9th बाकी है, राइट? तो फ्रेंड्स 9th इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को पहले समझने की ट्राई करना। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन if in the capacitor given in the question number 8 a 3 millimeter thick mica sheet having dielectric constant 6 were inserted between the plates। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ऐसा था कि हमको 8th क्वेश्चन में 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस दिया था एंड उसका एरिया दिया था, तो उसके द्वारा हमको कैपेसिटेंस भी मिल गया था क्वेश्चन नंबर 8 में एंड उसका चार्ज Q इक्वल्स टू CV चार्ज भी मिल गया था। बट यहाँ पे फॉर्चुनेटली 2 प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 मिलीमीटर है एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस भी 3 मिलीमीटर ही है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसा हुआ कि 2 प्लेट के बीच का पूरा जो रीजन है 100% रीजन, 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस भी 3 मिलीमीटर है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस भी 3 मिलीमीटर ही है। मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 2 प्लेट के बीच का पूरा जो रीजन है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के द्वारा फिल हो रहा है। तो इन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस? चलो बताओ मुझे। पूरा जो रीजन वो फिल हो रहा है, तो व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस? C dash is equal to CK। तो आपको पता है कि अगर पूरा रीजन डाइलेक्ट्रिक के द्वारा फिल हो रहा है तो हमको डायरेक्टली K टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में C तो फाइंड किया हुआ ही है, क्वेश्चन नंबर 8 में C तो फाइंड किया हुआ है और K का वैल्यू हमको 6 दिया हुआ है, तो वी कैन फाइंड दैट न्यू कैपेसिटेंस नंबर 1। अच्छा देखो ये तो गलत हो गया फ्रेंड्स, मुझे एक नया कंसेप्ट आपको करवाना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 9 मुझे एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपको करवाना पड़ेगा। तो इसको अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ 5 मिनट के बाद, बट बिफोर दैट आई नीड टू इंट्रोड्यूस अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो वो JEE नीट के लिए बहुत काम का है। तो फ्रेंड्स अभी मैं एक और कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ, उसके बाद मैं 9th क्वेश्चन को ले सकता हूँ बिकॉज वो क्वेश्चन में कुछ ऐसा था कि जो आपको पता नहीं है। तो फ्रेंड्स एक नया कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, केस नंबर 1, dielectric material is inserted between the 2 plate of a capacitor after the battery is removed। मतलब एक बार कैपेसिटर को आपने चार्ज कर दिया बैटरी के द्वारा, फिर बैटरी को रिमूव कर दिया हुआ है और उसके बाद मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट किया हुआ है। दैट इज अ केस नंबर 1। एंड इन द केस नंबर 2, dielectric material is
inserted between two plates of a capacitor keeping battery in connected state. मतलब यहाँ पे कैपेसिटर के दो प्लेट के अंदर मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को मैं इंसर्ट कर रहा हूं, बट बैटरी को कनेक्टेड स्टेट में ही रखने वाला हूं। और यहाँ पे क्या किया है, मैंने बैटरी को रिमूव कर दिया है। बैटरी को मैंने रिमूव कर दिया है। बैटरी को रिमूव करने के बाद यहाँ पे मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने वाला हूँ। तो ये दोनों अलग केस हुआ। तो बैटरी को अगर आप रिमूव कर देते हो तो क्या होगा फ्रेंड्स, कि अगर बैटरी को रिमूव कर देते हो तो ऐसा होगा कि चार्ज का जो ट्रांसफर है बैटरी के द्वारा, कैपेसिटर आप चार्ज करते हो, बट बैटरी अगर रिमूव कर देते हो तो चार्ज का जो ट्रांसफर है वो अभी नहीं हो पाएगा। मतलब अब जो भी चार्ज कैपेसिटर के अंदर रहेगा वो कांस्टेंट होगा। तो अगर बैटरी रिमूव किया हुआ है तो चार्ज कैपेसिटर बैटरी में से ले भी नहीं पाएगा, वापस भी नहीं दे पाएगा। तो मतलब अब क्या होगा कि चार्ज जो होगा कैपेसिटर का वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे क्या होगा कि चार्ज विल रिमेन, आप चाहे मीडियम ऐड करते हो या नहीं ऐड करते हो, चार्ज जो होगा वो कांस्टेंट वो हो जाएगा। बिकॉज बैटरी के द्वारा कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर चार्ज कहाँ से ले पा रहा है, बैटरी के द्वारा ले पा रहा है। अगर बैटरी ही निकाल दी है, एक बार उसको चार्ज करके बैटरी निकाल दिया है, तो अब चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा, बैटरी में को वो चार्ज दे नहीं पाएगा या उसमें से ले नहीं पाएगा। मतलब अगर आपने बैटरी रिमूव कर दिया है तो कैपेसिटर का चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आपने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, अगर आपने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है तो क्या होगा कि पोटेंशियल जो है, आप चाहे उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम चाहे आप इंसर्ट करते हो या डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट नहीं करते हो, बट उसका जो पोटेंशियल होगा वो बैटरी कनेक्टेड स्टेट में है, तो बैटरी का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस वो कैपेसिटर की दो प्लेट में लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपको ये चीज याद रखना है कि अगर बैटरी कनेक्टेड स्टेट में है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स रिमेन्स कांस्टेंट, और अगर बैटरी को रिमूव कर दिया हुआ है फ्रेंड्स तो क्या कांस्टेंट रहेगा, बैटरी को रिमूव कर दिया तो क्या कांस्टेंट रहेगा, चार्ज। या तो अब मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि अब कौन सा क्वांटिटी कैसे चेंज होगा। अब यहाँ पे कौन सा क्वांटिटी कैसे चेंज होगा वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। Okay, so the very first quantity is a capacitance. तो सबसे पहले सोचते हैं कि कैपेसिटेंस क्या क्या होता है। अब मैं क्या करने वाला हूं, दो प्लेट के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करने वाला हूं। एक केस में मैंने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, दूसरे केस में मैंने बैटरी को रिमूव कर दिया हुआ है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, कैपेसिटेंस का क्या होगा।
तो फ्रेंड्स वैसे आपको पता है कि कैपेसिटेंस तो क्या है, कैपेसिटेंस तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है। ये तो बेसिक फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब अगर आप मीडियम चेंज करते हो, हाँ, एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, वो आप चेंज नहीं कर रहे हो। बट अगर आप दो प्लेट के बीच का मीडियम चेंज करते हो, तो चाहे आपने बैटरी रिमूव किया हुआ है या बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, इन बोथ द सर्कमस्टेंसेस कैपेसिटेंस इज इंक्रीज टू के टाइम्स। इन दोनों सर्कमस्टेंसेस में कैपेसिटेंस को तो के टाइम इंक्रीज होना ही होना है, चाहे बैटरी कनेक्ट किया हुआ है या चाहे बैटरी को रिमूव किया हुआ है। अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब और पूरा रीजन, मतलब दोनों प्लेट का पूरा रीजन अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब के द्वारा फिल करते हो, तो कैपेसिटेंस को तो इंक्रीज होना ही होना है, के टाइम्स होना ही होना है। सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, तो चार्ज होता है, चार्ज Q इक्वल्स टू CV होता है। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे बैटरी मैंने रिमूव कर दिया हुआ है, तो आप मीडियम डालो या ना डालो, जो भी चार्ज कैपेसिटर के पास है वो उसका कुछ नहीं हो पाएगा, बिकॉज बैटरी अगर होती तो वो चार्ज ले सकता या दे सकता, बट बैटरी को आपने निकाल दिया है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो चार्ज उसके अंदर स्टोर रहेगा वो जो था वही का वही रहेगा, इट विल बी रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब अब चार्ज जो है वो आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हो या नहीं डालते हो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट यहाँ पे क्या होगा, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे क्या होगा? व्हाट शुड बी द न्यू चार्ज हियर? अगर बैटरी कनेक्टेड स्टेट में है और उसके बाद अगर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हो, बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी कनेक्टेड स्टेट में है, और अगर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हो, तो अभी जो चार्ज स्टोर करेगा वो पहले Q0 था, तो अब वो कितना करेगा? कोई बताएगा व्हाट शुड बी द न्यू चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर कीपिंग द बैटरी इन कनेक्टेड स्टेट? कोई बताएगा मुझे अब क्या होगा? V के C। तो अभी जो चार्ज स्टोर होगा वो पहले से K टाइम्स ज्यादा स्टोर होगा। Q पहले से K टाइम्स ज्यादा स्टोर होगा बिकॉज Q इज इक्वल्स टू CV। देखो यहाँ पे पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है बिकॉज बैटरी कनेक्टेड स्टेट में है, तो कैपेसिटर के दो प्लेट का जो पोटेंशियल होगा वो वही का वही रहेगा। बट C तो K टाइम इंक्रीज हो रहा है ना, पोटेंशियल कांस्टेंट हो रहा है, बट C तो कहाँ, यहाँ पे K टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो चार्ज को भी K टाइम इंक्रीज होना ही पड़ेगा। तो मतलब अगर आप बैटरी को कनेक्टेड स्टेट में रखते हो तो अब कितना चार्ज स्टोर होगा? पहले से K टाइम्स ज्यादा स्टोर होगा। थर्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू Q बाई C होता है, C इज इक्वल टू QE, तो V इज इक्वल टू Q बाई C। तो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि अब यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा, क्या होगा? वो वही का वही रहेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा इस केस में? सो डिक्रीज। तो यहाँ पे पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय K टाइम्स, बिकॉज जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो Q बाई C है। अब देखो Q तो यहाँ पे कांस्टेंट है, बैटरी को रिमूव कर दिया इसलिए चार्ज का वेरिएशन, चार्ज का ट्रांसफर होने का बंद हो जाएगा, मतलब Q तो कांस्टेंट है, बट C तो K टाइम इंक्रीज हो रहा है ना, तो डिनोमिनेटर K टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो उसका मतलब ऐसा होगा कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस पहले जो था वो K टाइम रिड्यूस हो जाएगा। MCQ में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक कैपेसिटर है, उसको 100 वोल्ट के बैटरी से चार्ज किया हुआ है, 100 वोल्ट के बैटरी से चार्ज किया हुआ है, मतलब अभी इसका जो पोटेंशियल है वो 100 वोल्ट है। अब बैटरी को रिमूव कर दिया है और उसके बाद उसके अंदर 5 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम डाला हुआ है। बैटरी को रिमूव करने के बाद उस दो प्लेट के बीच में 5 डाइलेक्ट्रिक वाला मीडियम डालते हैं, तो व्हाट इज द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस? तो वो हो जाएगा 100/5, मतलब 20 वोल्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इस टाइप के एमसीक्यू पूछते हैं। बट अगर बैटरी कनेक्टेड स्टेट में है, तो बैटरी अगर कनेक्टेड स्टेट में है, अगर बैटरी कनेक्टेड स्टेट में ही है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो, पोटेंशियल जो होगा वो वही का वही रहेगा, पोटेंशियल जो है वो वही का वही रहेगा।
बिकॉज बैटरी इज कनेक्टेड स्टेट, तो बैटरी का जो पोटेंशियल रहेगा वही कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में रहेगा। तो बैटरी एज इज इन अ कनेक्टेड स्टेट, तो पोटेंशियल जो होगा वो वही का वही रहेगा। सर हाँ बोलो। सर ऐसा कह सकते हैं कि वोल्टेज तो डिक्रीज होता ही है अगर डाइलेक्ट्रिक हम मीडियम रखते हैं, पर बैटरी होता है तो बैटरी कनेक्टेड है तो जो डिक्रीज वोल्टेज है हाँ उसको फिर वो से वापस से इंक्रीज उसको, कर, हाँ वो वापस उसको इंक्रीज कर देगा। क्यों इंक्रीज कर देगा? तो वो क्योंकि चार्ज, कैपेसिटेंस नहीं वो चार्ज बढ़ा कांस्टेंट। देगा। नहीं, वो हाँ बैटरी ज्यादा चार्ज प्रोवाइड करके वापस से वही पोटेंशियल ले आएगी। ओके। देखो यहाँ पे चार्ज भी बढ़ रहा है ना साथ में, देखो तो वो चार्ज बैटरी ज्यादा प्रोवाइड करेगा। जैसे ही मीडियम डालोगे तो वोल्टेज कम हो गए, बट बैटरी अगर कनेक्टेड स्टेट में तो क्या करेगी, वो ज्यादा चार्ज देगी और वापस से पोटेंशियल जो है उसको वापस ले आएगी। इज इट क्लियर? यस सर। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आप आइदर हाफ CV स्क्वायर भी यूज कर सकते हो या Q स्क्वायर बाई 2C भी यूज कर सकते हो। तो मुझे ये सोच के बताओ कि अगर बैटरी को रिमूव करने के बाद डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो पहले स्टोर था, पहले जो स्टोर था वो था, बट अब कितना होगा? वो U डैश क्या होगा? K टाइम्स डिक्रीज। तो इट इज अ रिड्यूसिस बाय K टाइम। सही बात है आपको। क्यों? आप कोई भी इक्वेशन सोच लो, कोई भी सोच लो। चलो ये सोचते हैं, तो Q तो कांस्टेंट है यहाँ पे Q कांस्टेंट है, बट C तो K टाइम इंक्रीज हो रहा है ना, तो डिनोमिनेटर K टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? और दूसरी बात, सपोज कि आप CV स्क्वायर सोचते हो, हाफ CV स्क्वायर में क्या होता है कि जो C है वो K टाइम इंक्रीज होता है, बट V स्क्वायर का जो V है वो K टाइम रिड्यूस होता है। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में K स्क्वायर आएगा, तो वापस से डिनोमिनेटर में क्या आएगा? मतलब आप कोई भी फॉर्मूला सोच लो वो K टाइम रिड्यूस ही होगा, एनर्जी K टाइम रिड्यूस ही होगा। बट मुझे ये बताओ कि बैटरी कनेक्टेड स्टेट में अगर आप दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हो, बैटरी कनेक्टेड स्टेट में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हो तो एनर्जी का क्या होगा? K स्क्वायर इंक्रीज, नहीं K एनर्जी इंक्रीज टू K टाइम्स, इंक्रीज टू K टाइम्स क्यों होगा? तो कोई भी फॉर्मूला सोच लो आप, वो K टाइम इंक्रीज ही होगा। हाफ CV स्क्वायर सोचते हो तो बैटरी कनेक्टेड स्टेट में वोल्टेज सेम रहते हैं, बट C तो K टाइम इंक्रीज हुआ ना, तो न्यूमरेटर K टाइम इंक्रीज हुआ। Q स्क्वायर बाई 2C सोच लो, तो Q स्क्वायर में Q K टाइम इंक्रीज हो रहा है तो K स्क्वायर आएगा, बट नीचे भी C भी K टाइम इंक्रीज होगा ना, तो नीचे भी K आएगा, ऊपर K स्क्वायर नीचे K, एक K रहेगा। कोई भी हिसाब से सोच लो आप, इसमें एनर्जी स्टोर ज्यादा होगा, K टाइम इंक्रीज हो जाएगा स्टोर। तो ये सारी जो चीज थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। मतलब आपको देखना है कहीं पे भी अगर क्वेश्चन पूछा है और बोला हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं दो प्लेट के बीच में, तो कैपेसिटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, कैपेसिटेंस तो K टाइम इंक्रीज होने ही होने वाला है, बट बाकी सबका जो फॉर्मुलेशन है वो थोड़े अलग है। आपको एक ही चीज याद रखना है, ऑटोमेटिकली बाकी सब सेट हो जाएगा। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेंगे, अगर बैटरी रिमूव कर दिया है तो चार्ज का ट्रांसफर बंद हो जाएगा, तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। दैट्स इट, आपको ये दो चीज याद रखना है, बाकी सब ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। तो वो मैंने ऑलरेडी वहां पे मेंशन किया हुआ है दोनों में। तो ये जो चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम वो क्वेश्चन वापस से ले पाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बेस पे क्वेश्चन IIT में पूछे हुए, IIT में के अंदर इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे हुए। मैं जब JEE सॉल्व कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। तो वापस से वो क्वेश्चन नंबर, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 था वहां पे आते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक बार फिर से देख लो कि इन द क्वेश्चन नंबर 8 अगर मैं 3 मिलीमीटर थिकनेस वाला एंड 6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम ऐड करता हूं, तो दो चीज के लिए मुझे फाइंड करना है। मुझे फाइंड करना है दो चीज के लिए कि बैटरी को कनेक्ट व्हाइल द बैटरी इज रिमेन्ड इन कनेक्टेड स्टेट एंड आफ्टर, बैटरी को कनेक्टेड स्टेट में रखते हैं या बैटरी को रिमूव करके कनेक्ट करते हैं। तो आपको तीन चीज फाइंड करना है। तो आपको ये दोनों केस में तीन चीज को फाइंड करना है। आपको यहाँ पे फाइंड करना है कैपेसिटेंस को,
नंबर 2 आपको फाइंड करना है पोटेंशियल को, एंड नंबर 3 आपको फाइंड करना है चार्ज को। मतलब ये तीनों चीज दोनों केस में आपको फाइंड करना है। तो पहले हम केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1 मतलब क्या हुआ, वो पोटेंशियल को मैंने कनेक्टेड स्टेट में रखा हुआ है। अभी केस नंबर 1 ले रहे हैं, मतलब बैटरी को कनेक्टेड स्टेट में रखते हैं, और केस नंबर 2 में बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं। तो चाहे कोई भी केस हो, आपको ये पता है कि कैपेसिटेंस का तो क्या होगा, वो तो के टाइम इंक्रीज ही हो जाएगा। बट अगर अगर वोल्टेज सप्लाई इज कनेक्टेड, देन द चार्ज जो है वो पहले जो चार्ज था, देखो ऊपर का क्वेश्चन देखो, उसमें चार्ज कितना था पहले, देखो ऊपर का क्वेश्चन, जो चार्ज जो था वो 18 इंटू 10⁻⁻10 था। अब यहाँ पे चार्ज का आंसर क्या आया, देखो 108 हो गया। क्यों? बिकॉज मैंने बताया ना कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो जो नया चार्ज होगा वो के टाइम इंक्रीज हो जाएगा। के का वैल्यू 6 है और Q0 जो है वो 18 है, तो वो आ जाएगा 108 इंटू 10⁻⁻10 कूलम आ जाएगा। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम। बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल जो है वो सेम टू सेम रहेगा। तो ये केस नंबर 1 पता। अब केस नंबर 1 खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो बी में क्या है, तो बी में आपको क्या करना है कि बैटरी को रिमूव कर देना है। तो अगर बैटरी को रिमूव कर देते हैं तो चार्ज विल बी रिमेन्स द सेम। तो चार्ज जो है जो था पहले कितना था चार्ज क्वेश्चन नंबर 18 में, तो 18 इंटू 10⁻10 कूलम था, तो वो वही रहेगा 18 इंटू 10⁻10 मतलब 1.8 नैनो कूलम ही रहेगा। बट अब पोटेंशियल क्या होगा, तो बैटरी अगर रिमूव कर दिया है तो मैंने बताया कि पोटेंशियल के टाइम रिड्यूस होगा, तो यहाँ पे के टाइम रिड्यूस किया हुआ है। कैपेसिटेंस तो के टाइम बढ़ने वाला ही है दोनों केस में। तो क्या अभी ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आया? यस सर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होना चाहिए, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन टू चार्ज कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। ये तीनों के बारे में हमको बताना है। इन बोथ द केस, विच टू केसेस, बैटरी इज कनेक्टेड स्टेट एंड बैटरी इज in the removed state. So what would happen to the charge, capacity and potential when we insert a mica sheet of a 3 millimeter thickness having dielectric constant 6 in the two cases, when the battery is connected state and when the battery is removed state? तो ये जो पूरा जो चीज था वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब और एक अच्छा न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। Question number 10 you can do. Okay. क्या फ्रेंड्स मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 22 क्वाड्रुपल वाला क्वेश्चन करवा दिया, बाकी है ये क्वाड्रो 2 डाइपोल इन द सेम एक्सिस इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्वाड्रुपल का करवाया कि बाकी है ये क्वेश्चन? नहीं सर। बाकी है। ये क्वाड्रुपल का बाकी है 22 क्वेश्चन। यस सर। ओके, वो बाद में करते हैं अभी, बट उसके पहले क्वेश्चन नंबर 24 करवाया बाकी है। ये क्वेश्चन नंबर 24 बताओ मुझे, करवाया ही हुआ है बाकी है? बाकी है। तो वो खुद कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 24 आप खुद कर सकते हो। क्या है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अ प्लेट, आपको एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको एरिया फाइंड करना है, और वो दिया हुआ है कि कैपेसिटेंस दिया हुआ है आपको 2 फैराडे दिया हुआ है, और डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट भी दिया हुआ है, और एरिया फाइंड करना है। क्या ये फाइंड कर सकते हो आप? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जस्ट आपको करना है। तो आपको मतलब सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, और आपको एरिया फाइंड करना है। तो यू कैन डू दिस। तो आप ये चीज सॉल्व कर सकते हो।
वो खुद मैं दे सकता हूँ आपको। अच्छा ये तो कर सकते हो आप। यप, क्वेश्चन नंबर 26 मैंने करवा दिया, बाकी है 26 के बारे में बताओ, करवा दिया बाकी है? बाकी। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 26। तो क्या है, द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर प्लेट, द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव एन एरिया। चलो आपको 26 क्वेश्चन में आपको एरिया दिया हुआ है, इसका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, मतलब एरिया दिया हुआ है आपको, और दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड कर सकते हो इन दोनों के द्वारा? तो डेफिनेटली यू कैन फाइंड एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मीडियम का कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या लेना पड़ेगा, वो दो प्लेट के बीच में वैक्यूम ही है ऐसा सोच के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप पहली लाइन को देखते ही डेफिनेटली आपको ये स्ट्राइक हो जाएगा कि कैपेसिटेंस तो मिल जाएगा, इसका कैपेसिटेंस तो मिल सकता है। अब क्या किया हुआ है, अभी ऐसा दिया हुआ है कि उसको 400 वोल्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि हाउ मच द, क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड। चलो कोई मुझे बताएगा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर? तो बताओ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ CV हाफ CV स्क्वायर, राइट। बट सी के बदले आप क्या लिख सकते हो? કેસી एप्सिलॉन કેમ ए ઇન્ક્રીઝ થશે ને, શું કહો છો? ઇન્ક્રીઝ થશે શું કહો છો? એટલે આમાં એનર્જી ઇન્ક્રીઝ થશે તમે હમણાં જેમ કરાવ્યું ના, આમાં તો મીડિયમ એન્ટર કરવાની ક્યાં વાત જ છે? આમાં તો સિમ્પલ કેપેસિટરને 400 વોલ્ટની બેટરી સાથે કનેક્ટ કરીએ તો એનર્જી કેટલી મળે? ડાઇલેક્ટ્રિક મીડિયમ એન્ટર કરીએ તો ઇન્ક્રીઝ કે ડિક્રીઝ થાય? આમાં તો જસ્ટ કેપેસિટરને બેટરી સાથે કનેક્ટ કરવાની છે, તો એ બેટરી શું કરશે, કેપેસિટરમાં એનર્જી સ્ટોર કરશે, અને કેટલો એનર્જી સ્ટોર થાય? તો હાફ CV સ્ક્વેર જેટલો, અને C ના વેલ્યુ તો એપ્સિલોન નોટ A બાય D છે જ, એટલે આમાં ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ થવાની વાત ના હોય, આમાં સ્ટોર થવાની વાત હોય। તો એનર્જી એટલો સ્ટોર થશે હાફ CV સ્ક્વેર, અને વોલ્ટેજ તો આપણને આપ્યા જ છે, વોલ્ટેજ ઇઝ ગિવન ટુ અસ। તો we have a area, we have a distance between the two plate, we have a potential difference as well, so you can find the energy stored in the capacitor। Now what is the question B? View this energy as a stored in the electrostatic field between the two plates and obtain the energy per unit volume, and U કીધો છે, hence derive the relation between the U and the magnitude of the electric field। तो ये थ्योरी हो गया, ये पूरा क्वेश्चन थ्योरेटिकल हो गया। वो थ्योरी हमने डिस्कस किया था ना, एनर्जी डेंसिटी वाला, तो एनर्जी डेंसिटी को रो के बदले यू बोला हुआ है, तो यू इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी जो है वो हाफ CV स्क्वायर है, एंड जो वॉल्यूम है वो A इंटू डी है। तो हमको ये पता है हाफ C के बदले आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और V स्क्वायर बाई AD, A गेट कैंसल्ड, तो ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट V बाई डी द होल स्क्वायर। बट V बाई डी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये प्रूव हो गया एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E स्क्वायर। तो ये प्रूव करना था सेकंड क्वेश्चन में। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है उसको डिराइव करना था, वो डिराइव भी कर दिया, वो थ्योरी ही थी, वो थ्योरी हमने फिर से यहाँ पे लिख दिया। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो आप देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन का आंसर वही करना है हमको वो फॉर्मूला डेरिवेशन करना है। तो पहले हमने एनर्जी फाइंड किया, एनर्जी फाइंड करने के लिए पहले कैपेसिटेंस फाइंड किया, उसके बाद हाफ CV स्क्वायर किया, तो उसके द्वारा आपको एनर्जी मिल गया। अब एनर्जी डेंसिटी भी फाइंड किया और उसके फॉर्मूला भी डिराइव किया। तो एनर्जी डेंसिटी भी हम फाइंड कर सकते हैं, एनर्जी बाय वॉल्यूम, एंड उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ का रिलेशन का फॉर्मूला भी हमने डिराइव कर दिया। तो इज दैट क्लियर एवरीबॉडी फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, क्या हमने क्वेश्चन नंबर 33 को डिस्कस किया है कि बाकी है?
यस सर, वो तो होमवर्क में भी दिया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 आई थिंक हैज डिस्कस्ड, राइट? तो वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो फ्रेंड्स, मैंने आज दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किए। अब मैं एक तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। ऑलरेडी मैंने दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज डिस्कस कर दिए हैं। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं वापस से व्हाइट बोर्ड को शेयर करने वाला हूं और वो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। ओके, तो फ्रेंड्स, क्या हुआ ये? ओके, यहाँ पे कुछ ओके, आर यू एबल टू सी द व्हाइट बोर्ड ऑन योर स्क्रीन? क्या आप आपके स्क्रीन में व्हाइट बोर्ड देख रहे हो? यस सर। ओके, सो फ्रेंड्स, Yes, sir. वन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वन मोर कंसेप्ट यहाँ पे मैं आपको बोलने वाला हूँ। ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Suppose capacitor C1 is charged by V1 potential and capacitor C2 is charged by V2 potential, and both are disconnected. Both are disconnected with their respective source. मतलब दोनों को अलग से चार्ज किया हुआ है। एक को V1 वोल्ट से चार्ज किया हुआ है, मतलब एक का वोल्टेज V1 हो गया, दूसरे को मैंने V2 वोल्ट से चार्ज किया है, मतलब उसका वोल्टेज V2 हो गया। अब दोनों के साथ जो बैटरी मैंने कनेक्ट किया, दोनों के जो सोर्स था बैटरी का, वो दोनों के सोर्स को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। बट फिर क्या होगा कि कैपेसिटर C1 का जो पोटेंशियल है वो तो V1 रहेगा ही रहेगा, बिकॉज चार्ज तो हुआ था। तो एक कैपेसिटर जो है वो C1 है, अभी उसके पास कितना पोटेंशियल है? V1 है, बिकॉज उसको V1 पोटेंशियल के साथ चार्ज किया हुआ है। दूसरा कैपेसिटेंस जो है वो C2 है और उसका जो पोटेंशियल है वो V2 है, बिकॉज उसको V2 वोल्ट से चार्ज किया हुआ है। नाउ केस वन, हाँ, अभी मैं ऐसा कह सकता हूं कि अभी यहाँ पे दोनों के अंदर चार्ज कितना होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि राइट नाउ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, इसको हम Q1 एंड Q2 बोलते हैं। तो Q1 इज इक्वल टू C1 V1 एंड इसका जो चार्ज है अभी वो C2 V2 होगा। तो ये इन दोनों कैपेसिटर के चार्ज अभी हो गए।
तो अभी केस 1, नाउ both capacitor are connected in a parallel as shown in figure. अब ये दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। दोनों के पॉजिटिव प्लेट्स साथ में कनेक्ट हो, दोनों के पॉजिटिव प्लेट्स साथ में कनेक्ट हो, इस हिसाब से मैंने दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, C1 एंड C2 को। तो मुझे ये बताओ कि अगर हम दोनों कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका क्या सेम हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। सही बात है, पैरेलल में ऑलवेज पोटेंशियल सेम होता है। तो दोनों के इनिशियल पोटेंशियल जो थे बिफोर कॉम्बिनेशन, इनिशियल पोटेंशियल जो थे वो क्या थे? V1 एंड V2 थे। बट आफ्टर कनेक्शन नाउ देयर कॉमन पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो नाउ देयर कॉमन पोटेंशियल, उसको V इफेक्टिव बोलते हैं। तो V इफेक्टिव बिकम्स Q इफेक्टिव अपॉन C इफेक्टिव। बट ये इफेक्टिव चार्ज कितना होगा? तो Q1 प्लस Q2 होगा। एंड पैरेलल में इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होता है, कोई मुझे बताएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस? C1 plus C2। C1 plus C2। तो अभी उन दोनों का कॉमन पोटेंशियल जो होगा वो V इफेक्टिव इज इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपके लिए बहुत ही काम का है। ये किसके लिए फॉर्मूला है? अगर दो कैपेसिटर इनिशियली, दो अलग अलग कैपेसिटर इनिशियली V1 एंड V2 वोल्ट के द्वारा चार्ज हो गए हैं और उसको दोनों को बैटरी से रिमूव कर दिया है और फिर उन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर उन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब केस नंबर 2, सपोज के मैंने यहाँ पे देखो, केस 1 में मैंने कैसा कनेक्शन किया था कि दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल साथ में कनेक्ट हो, इस हिसाब से मैंने कनेक्शन किया था। बट अगर मैं कुछ ऐसा पैरेलल कॉम्बिनेशन करता हूं कि दोनों के अपोजिट टर्मिनल साथ में आते हैं, एक के पॉजिटिव प्लेट के साथ दूसरे का नेगेटिव प्लेट में कनेक्ट करता हूं, तो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन द कॉमन पोटेंशियल विल बी, कोई मुझे बताएगा क्या फॉर्मूला होना चाहिए इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन? व्हाट शुड बी द कॉमन पोटेंशियल? V is equal to V1 plus V2 plus। तो अभी V इफेक्टिव क्या होना चाहिए, कोई मुझे बताएगा? देखो सिंपल सी बात है, जो दूसरा कैपेसिटर है ना वो मैंने उल्टा कर दिया है, मतलब उसका जो वोल्टेज था वो मैंने उल्टा दिया, दूसरा कैपेसिटर का वोल्टेज मैंने उल्टा कर दिया। तो अब क्या फॉर्मूला होना चाहिए, सोचो। तो अभी जो फॉर्मूला होगा, मतलब V2 जहां पे है, V2 ऊपर के फॉर्मूला में जहां पे V2 है वहां पे मुझे माइनस V2 लिखना पड़ेगा, मुझे माइनस V2, बिकॉज V2 का पोलरिटी उल्टा हो गया। तो V2 का पोलरिटी उल्टा हो गया तो मतलब V2 के बदले माइनस V2 लिखते हैं, तो फॉर्मूला में बीच में ऊपर न्यूमरेटर में माइनस आ जाएगा। तो मतलब आपको देखना है कि वो दोनों कैपेसिटर कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है। अगर दोनों के प्लस प्लस साथ में है तो V इफेक्टिव का फॉर्मूला होगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 होगा। अगर दोनों के प्लस एंड माइनस साथ में है तो उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा, मतलब इफेक्टिव
पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 होगा। अब दोनों केस में एनर्जी के बारे में सोचते हैं तो इनिशियल एनर्जी इन बोथ द सिचुएशन, इनिशियल एनर्जी जो था सिस्टम का, इनिशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, तो U इनिशियल कितना था, तो हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर था। बट एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, energy of a system after connecting them together, after this parallel connection, तो अब जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हो जाएगा हाफ C इफेक्टिव V इफेक्टिव स्क्वायर। हाँ, C इफेक्टिव तो जो है वो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का C1 प्लस C2 रहेगा, बट V इफेक्टिव जो है वो वेराई होगा, मतलब केस के साथ, मतलब कौन सा केस है उसके द्वारा आपको फाइंड करना पड़ेगा, वो कौन सा केस है उसके द्वारा आपको फॉर्मूला वहां पे लगाना पड़ेगा। तो ये जो है वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, एंड जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो आपको ऐसे मिल सकता है। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर बीइंग अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर, अब चार्ज कितना होगा दोनों कैपेसिटर का, चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर। इनिशियली जो था क्या था, इनिशियली जो था वो क्या था, वो तो C1V1 एंड C2V2 था। बट अब जो नया चार्ज है आफ्टर कनेक्शन Q1 डैश इज इक्वल्स टू C1V1 नहीं, अब क्या हो जाएगा उसका V इफेक्टिव, बिकॉज अब दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल V इफेक्टिव ही है। तो न्यू चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1 is a Q1 dash is equals to C1V effective and Q2 dash equals to C2V effective. So this will be the new charge stored in the capacitor. तो ये चीज है, इसके बेस पे से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक चीज आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर मैं आपको भेज भी दूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है। अब इसके द्वारा आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं अभी शेयर कर रहा हूं हमारे नोट्स न्यूमेरिकल्स के मैं शेयर कर रहा हूं। तो उसका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 देख लो एक बार। फ्रेंड्स आप क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। क्या आप आपके मोबाइल के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 27 देख पा रहे हो? यस सर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है देखो, तो उसमें ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 में कि क्या दिया हुआ है कि एक 4 माइक्रोफैराडे का चार्ज है, कैपेसिटर है, उसको 200 वोल्ट से चार्ज किया हुआ है। मतलब जो C1 है वो 4 माइक्रोफैराडे है और उसका जो पोटेंशियल है वो 200 वोल्ट है। अब क्या किया हुआ है कि एक दूसरा कैपेसिटर है वो 2 माइक्रोफैराडे का है। तो दूसरा जो कैपेसिटर है वो 2 माइक्रोफैराडे का है, बट वो इनिशियली अनचार्ज्ड है। तो इनिशियली अनचार्ज है मतलब उसका पोटेंशियल इनिशियली कितना हुआ, वो दूसरा कैपेसिटर जो है वो इनिशियली अनचार्ज्ड है, मतलब उसका जो पोटेंशियल हुआ वो 0 हो गया। तो अब क्वेश्चन ऐसा है कि हाउ मच द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब हम ये दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो कितना एनर्जी सिस्टम का लॉस्ट होगा। वो लॉस जो होगा वो रेडिएशन के द्वारा एंड हीट एनर्जी के द्वारा होगा, बट कितना लॉस्ट होगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एनर्जी लॉस फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो एक काम करो, अगर आपको एनर्जी लॉस फाइंड करना है तो एक काम करो, आप पहले इनिशियल एनर्जी फाइंड कर दो। रेशियो नहीं मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। आप इनिशियल एनर्जी फाइंड कर दो। तो इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस 0। इनिशियली सेकंड कैपेसिटर वाज अनचार्ज्ड, तो उसका तो कोई एनर्जी रहेगा ही नहीं। तो मतलब क्या होगा कि इनिशियल एनर्जी जो सिस्टम का है
वो हाफ C1 V1 स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पे जो मेथड दिया हुआ है वो मेथड शायद मतलब सेम ही मेथड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो इनिशियल एनर्जी है वो सिस्टम का, अगर आप हाफ CV स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, कनेक्शन होने के बाद एनर्जी फाइंड करना है। तो फाइनल एनर्जी कैसा मिलेगा आपको, हाफ C इफेक्टिव V इफेक्टिव स्क्वायर। अब C इफेक्टिव तो C1 प्लस C2 है, बट V इफेक्टिव क्या करना पड़ेगा यहाँ पे फ्रेंड्स। तो whenever not mention anything, कभी भी कुछ मेंशन नहीं किया है तो V इफेक्टिव आप इस हिसाब से फाइंड कर सकते हो, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब यहाँ पे ऑब्वियसली C2 V2 तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे C2 V2 तो जीरो हो जाएगा बिकॉज V2 itself is a zero initially। तो C1 का जो वैल्यू है वो 4 माइक्रोफेरेड है, V1 जो है वो 200 है, C1 प्लस C2 4 प्लस 2 मतलब 6 होगा, माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 मतलब ये हो जाएगा 400/3 वोल्ट। ये V इफेक्टिव मिल गया। अब U फाइनल कैसे मिलेगा आपको, हाफ C इफेक्टिव का वैल्यू C1 प्लस C2 है एंड V इफेक्टिव का स्क्वायर कर दो, तो हाफ C1 प्लस C2 मतलब 4 प्लस 2 6 माइक्रोफेरेड है एंड ये हो जाएगा 400/3 का स्क्वायर। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 5.33 इंटू 10⁻⁻² जूल मिलेगा। चलो ये मुझे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, बट मुझे फाइंड क्या करना है फ्रेंड्स, मुझे कितना लॉस हो रहा है वो फाइंड करना है। तो आपके पास इनिशियल 8 था और सिस्टम का फाइनल 5.33 हो गया, तो कितना लॉस होगा, लॉस कैसे मिलेगा, 8 minus 5.10 subtract हाँ, तो लॉस इन दिस फाइनल माइनस द लॉस एनर्जी लॉस, तो कैसे मिलेगा आपको डेल्टा U। तो U इनिशियल में से U फाइनल सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको एनर्जी लॉस मिल जाएगा। तो 8 माइनस ये रहा, देखो ऊपर की साइड ये लिखा हुआ ये रहा। तो एनर्जी लॉस अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल में से फाइनल को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको एनर्जी लॉस मिल जाएगा। तो क्या फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ ओके गुड, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये 27th क्वेश्चन है वो आप, तो ऐसे दो क्वेश्चन है, ऐसे और दो क्वेश्चन है, डिट्टो टू डिट्टो, लिट्टो टू लिट्टो, सेम टू सेम है। मैं आपको बताऊं, आप एक बार क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे दूसरे दो क्वेश्चन है, उसको इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। मैं आपको बताऊं कौन से दो क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव अ मिनट। तो एक है एक्सरसाइज का, ये रहा देखो, आपको इस जो ये क्वेश्चन नंबर 11 है ना, एक्सरसाइज का 11 क्वेश्चन देख लो, इसको ये मेथड से नहीं करना है, इसमें डायरेक्टली ये शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। हाँ, JEE नीट के लिए ये शॉर्टकट आपको याद रख सकते हो, JEE नीट के लिए ये शॉर्टकट आप याद रख सकते हो, बट आपको डायरेक्टली नहीं करना है। JEE नीट के लिए आप एनर्जी लॉस का ये शॉर्टकट डायरेक्टली याद रख सकते हो कि लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी कैन बी गिवन बाय दिस इक्वेशन, C1 C2 अपॉन हाफ C1 C2, ये फॉर्मूला है। ये एक्चुअली फॉर्मूला इज दिस, अगर आपको एनर्जी लॉस डायरेक्ट फाइंड करना है तो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। बट आपको यहाँ पे क्या करना है, पूरा चीज मतलब अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछे तो पूरा करना है, वही मेथड। देखो C1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, दूसरा C2 कैपेसिटेंस भी 600 फेराड का ही दिया हुआ है और इनिशियली अनचार्ज्ड है, मतलब V2 कितना होगा, वापस से V2 कितना लेना होगा, V2 कितना लेना होगा बोलो, 0। तो आपको वापस से सेम मेथड, इनिशियल एनर्जी फाइंड करना है, फाइनल एनर्जी फाइंड करना है उसी मेथड से, एंड लॉस इन द एनर्जी फाइंड करना है वही मेथड से। कैन यू डू इट योरसेल्फ? यस सर। आज यहाँ पे जो शॉर्टकट द्वारा डायरेक्टली दिया हुआ है, तो ये शॉर्टकट आप JEE नीट में अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली एनर्जी लॉस फाइंड करने के लिए, बट अभी आपको पूरा मेथड के साथ बताना है।
तो ये एक्सरसाइज का 11 क्वेश्चन भी सेम टू सेम रहेगा। एंड एक्सरसाइज का नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी वही है। आप देख लो, इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आ जाओ। देखो एक बार इसके क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। एक बार क्या लिखा है देखो, 900 पिकोफेरेड है, इज चार्ज्ड विद द 100 वोल्ट बैटरी, मतलब C1 V1 दिया हुआ है। हाउ मच द एनर्जी स्टोर्ड, मतलब उसका एनर्जी हो जाएगा हाफ CV²। पहला क्वेश्चन का आंसर हाफ CV²। अब क्या दिया हुआ है, दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड disconnected from the battery and connected to the another 900 picofarad capacitor which was initially uncharged। मतलब वापस से यहाँ पे वही बात है कि वापस से यहाँ पे C1 900, V1 100, C2 वापस से 900 पिकोफेरेड है, V2 0 है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि अब नया एनर्जी कितना है, व्हाट इज द न्यू एनर्जी। तो आपको यहाँ पे एनर्जी लॉस फाइंड नहीं करना है, खाली इनिशियली एंड फाइनल एनर्जी फाइंड करना है। तो इनिशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर एंड फाइनल एनर्जी हो जाएगा हाफ C इफेक्टिव V इफेक्टिव स्क्वायर, where C effective is equals to C1 plus C2 and V effective can be found by the formula C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2। तो फॉर्मूला में इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज एंड गेट द आंसर। तो यहाँ पे एनर्जी लॉस फाइंड नहीं करना है, यहाँ पे खाली इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी फाइंड करना है। तो क्या ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो? यस सर। तो फ्रेंड्स आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज मैंने 3 अलग से कंसेप्ट, नए कंसेप्ट कैपेसिटर के रिगार्डिंग सिखाए और उसके बेस के न्यूमेरिकल सिखाए। तो आज का लेक्चर फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपका अब लेक्चर जो आएगा वो लेक्चर अब आपका डायरेक्टली कौन से डे पे आएगा, रेगुलर लेक्चर अब मंडे को आएगा। मंडे आपका लेक्चर है डायरेक्टली। सैटरडे मतलब कल आपका JEE नीट का लेक्चर है। कल JEE नीट का लेक्चर है सेम टाइम पे। कौन सा टाइम पे? 1 to 2:30, 1 o'clock to 2:30। वो 2 to 3:30 बाय मिस्टेक लिख दिया था मैंने। 1 o'clock से लेके 30 तक आपका JEE का लेक्चर है। सर ट्यूसडे को लेक्चर नहीं है? देखो हमारे जो रेगुलर लेक्चर है ना वो ऐसे है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 3 लेक्चर जो है वो हमारे रेगुलर लेक्चर है, बोर्ड के लेक्चर है। एंड सैटरडे को हमारा JEE का लेक्चर रहेगा। वो सैटरडे का JEE का जो टाइम है वो 1 o'clock to 2, मतलब टाइम सबके सेम ही है, 1 o'clock to 2:30। बट 3 दिन हम रेगुलर लेक्चर लेंगे, एक दिन हमारा JEE का लेक्चर रहेगा। JEE का लेक्चर होगा हमारा सैटरडे को। इज इट क्लियर? हाँ सर। तो कल आपको JEE के लिए आना है 1 o'clock को। रेगुलर लेक्चर हमारा जो होगा वो अभी सीधा ट्यूसडे को आएगा। एंड मंडे को आपका एग्जाम है। एग्जाम के अंदर अभी जो मंडे जो एग्जाम है उसके पेपर आपको प्रक्षाल भाई को भेजना है। मैं नंबर व्हाट्सएप में सेंड करता हूं, आपको पेपर चेक करके वापस से व्हाट्सएप में मिल जाएगा। प्रक्षाल भाई का नंबर मैं आपको सेंड करता हूं, वो पेपर चेक करके आप देंगे। तो मंडे का जो एग्जाम है उसमें ओनली कैपेसिटर के ही क्वेश्चन पूछेंगे मैं, उसमें कैपेसिटर के रिगार्डिंग की क्वेश्चन होंगे। आज का लेक्चर का भी उसमें होगा। तो मंडे का जो एग्जाम है उसमें कैपेसिटर के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, थ्योरी होंगे, कुछ MCQ टाइप के क्वेश्चन भी होंगे। बट दैट ऑल विल बी द फ्रॉम द कैपेसिटर। इज दैट क्लियर टू यू एवरीबॉडी? हाँ सर। ओके, मैं यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। सर हाँ बोलो। सर एक डाउट था JEE का। हाँ वो मैंने करवाया हुआ है एक्चुअली।